بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جبکہ 10 کلاس اسلامیات لازمی باب پنجم ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے پاس حسن معاملات اور معاشرت باب پنجم ہمارے پاس آج سٹارٹ ہو گیا، جو کہ آپ لوگوں کا سیکنڈ لاسٹ باب ہوگا اس 10 کلاس کی اسلامیات لازمی کی بک سے۔ اور اس چیپٹر کی آگے ہمارے پاس فردر 3 سب چیپٹرز ہیں جس میں ہم لوگوں نے حسن معاملات اور معاشرت سے ریلیٹڈ چیپٹرز کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور آج فرسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ہمارے پاس سود کی حرمت، اور چیپٹر ہے جی ہمارے پاس 19 جو ہم ایز پر ریڈ اپنی نمبرنگ کے حساب سے دیتے آ رہے ہیں۔ تو چیپٹر 19 ہے سود کی حرمت، جو کہ ہمارے پاس سب ٹاپک ہے حسن معاملات اور معاشرت، جو کہ آج کے سیکشن میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سود کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کتنے قسم کا سود ہوتا ہے، سود کی کیا شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سود سے ریلیٹڈ کام کرنے سے، سود لینے سے، سود دینے سے، سود کا کاروبار کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ قرآن اور حدیث میں کیا احکامات اس سے ریلیٹڈ دیے گئے ہیں، اور اگر جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں ان کے کیا مسائل اور احکامات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ سود کس طرح سے ایک انفرادی، اجتماعی، دنیاوی اور آخرت کی زندگی پر جو ہے ہمارے لیے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور سود اور قرض ان دونوں میں فرق کیا ہے، لوگ قرض کو سود کے ضمن میں لے آتے ہیں اور سود کو قرض کے ضمن میں لے آتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکسرسائز کے شارٹ کوسچنز کو مارک کرتے جائیں گے تاکہ کم وقت میں ہمارا زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی جائیں۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، یہ آپ نے مارک کرتے جانا ہے۔ ربا کہتے ہیں سود کا معنی ہے قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کسی کو 1000 روپیز آپ نے اس کو ادھار دیا ہے، لیکن آپ نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک ہفتے بعد میں تم سے 2000 روپے واپس لوں گا، تو 1000 آپ نے قرض دے کے 2000 لینا ہے، تو اس کے اوپر 1000 آپ نے کیا لیا جی، سود لیا، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ تو اگر اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنی ٹائم لمٹ میں دے دو گے تو اتنا ہوگا، اتنے سے بڑھتا جائے گا تو آپ کا سود انکریز ہوتا جائے گا۔ موسٹلی بینکس میں جو ہے وہ اس طرح سے کام ہوتا ہے۔ تو یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ سود کے ضمن میں آتی ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے کہ مخصوص شرائط پر، اور ان شرائط کے اوپر آپ نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کی جو آپ کو قرض دی گئی رقم ہے اس پہ اتنا اضافہ اور نفع کے ساتھ آپ کو انکم ریٹرن کرنی ہوگی۔ جیسے 1000 روپے کسی کو قرض دینا اور دیتے وقت یہ شرط لگانا کہ 1000 کی بجائے 1500 روپے دینے ہوں گے، یہ اضافی 500 روپے کا شمار سود میں ہوگا۔ قرض دے کر مقروض سے روپے پیسے کے علاوہ دے کر کوئی فائدہ لینا بھی سود ہے۔ جیسے کسی کو قرض دیا اور اس سے اس کا مکان لے لیا اور اس مکان میں رہائش اختیار کر لی، لیکن اس کا کرایہ ادا نہ کیا، یا کرایہ دیا لیکن کم دیا، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں صرف پیسے سے ہی سود کا لین دین نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس کے بدلے اپنے گھر رکھ لیا، میجورٹی کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں اپنے گھر کے کاغذات جو ہے وہ ہمارے پاس رکھوا دی جائیں گے، اور اگر وہ کوئی نہیں ان کیس ادا نہیں کر سکتا اپنے پیسوں کو واپس سود کے ساتھ، تو ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جو کہ اسلام نے اور قانونی طور پر دونوں طرف سے منع ہے۔ کسی سے غلہ وغیرہ ادھار پر لیا لیکن جب واپس کیا تو جتنا لیا تھا اسے زیادہ واپس کیا، یہ بھی سود ہے۔ جیسے کسی سے 5 کلو گندم لی لیکن جب واپس کی تو 6 یا 7 کلو واپس کی، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ ایک ایسی لعنت ہے جس میں مفت خوری، لالچ، خود غرضی، سنگ دلی اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہے۔ سود معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ تو قرآن سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھنے سے پہلے ہم اپنے 2 شارٹ کوسچنز کو مارک کرتے ہیں۔ سب سے اوپر پہلا گراف میں ہمارے پاس آ جاتی ہے، سب سے پہلا فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے آپ کی ایکسرسائز کا کہ سود کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ اس میں آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا، یہاں تک کمپلیٹ مینشن کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ پیراگراف ریڈ کیا، سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، یہاں پہ آپ کا آتا ہے جی آپ کی ایکسرسائز کا 5th شارٹ کوسچن کہ سود کے معاشرے پر 2 نقصانات تحریر کریں۔ تو آپ ایسے لکھیں گے کہ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے کیونکہ یہ معاشرے میں مفت خوری، لالچ، خود غرضی، سنگدلی اور مفاد پرستی جیسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ بتائیں گے کہ یہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح سے سود سے منع فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پہ ہے جی آپ کے پاس آپ کی ایکسرسائز کا 2nd شارٹ کوسچن کہ
कि सूद की हुर्मत पर एक कुरानी आयत मुबारक का तर्जमा लिखें। हम आगे भी आयत पढ़ लेते हैं और आपको जो आसान लगेगी आपने कोई एक आयत उसमें एंटर करनी है। अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को हलाल और जायज़ जबकि सूद को हराम करार दिया गया है। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए मार्क करेंगे कि खरीदो फरोख्त को अल्लाह ताला ने क्या करार दिया है, हलाल और जायज़, और सूद को क्या करार दिया गया, हराम करार दिया गया। और शाद बारी ताला है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम किया है। तो ये आपके पास आपकी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें से कोई एक आयत मुबारक का तर्जुमा आप मेंशन करेंगे। कुरान मजीद में सूद को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतरादिफ करार दिया गया। ये भी आपके पास एक एमसीक्यू है कि किसके मुतरादिफ करार दिया गया है, जंग के मुतरादिफ करार दिया गया। सूद की वजह से गरचा बज़ाहिर माल में इजाफा होता है लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती और नागहानी आफात का बायस बनता है। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे कि जो है ये वक्ती इजाफा होता है सूद में, लेकिन किस तरह से ये आपके लिए नुकसान का बायस बनता है आप बताएंगे कि माल में नुकसान हो जाता है, बेबरकती होती है और नागानी आफात का बायस बनता है। अल्लाह ताला सूद को मटाता है और सदकात को बढ़ाता है। ये आपके पास है जी एमसीक्यू कि अल्लाह ताला किसको मटाते हैं, सूद को, और किसको बढ़ाते हैं, सदकात को। सूद का ना सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला जलील और रुसवा होगा। यहूदियत और मसीहत समेत हर मजहब में सूद हमेशा ही नाजायज रहा है, अदा के मुशरिकीन मक्का भी इसको हराम समझते थे। सूदी मुआशरत कभी तरक्की नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन गुनाह को मुहर्रम से बदकारी के मुतरादिफ करार दिया गया है। आपने ये मार्क करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के कम तरीन गुनाह को मुहर्रम से बदकारी के मुतरादिफ करार दिया गया है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों से पूछा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, उस पर गवाह बनने और उसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया में दिन को फरोख्त होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजों सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक वगैरह के सौदे में उधार और इजाफे को ममनू करार दिया गया है। इसको रबा उल फजल कहते हैं। ये आपके पास आपकी फर्स्ट टाइप आ गई सूद की, रिबा उल फजल। उसमें क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीजें, और वो चीजें कौन सी हैं, सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक के सौदे में उधार और इजाफे को मना करार दिया गया। इसे कहते हैं जी रिबा उल फजल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शब मुझे मिराज में सैर कराएगी, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेड़ मकानों की तरह बड़े थे। उनमें बहुत से सांप पेड़ों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहने लगे, ये सूद खाने वाले हैं। सुनन इब्न माजा की हदीस है 2273, जो कि आपके पास एक्सरसाइज का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि सूद की हुर्मत पर एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखे, तो उसमें आपने ये हदीस मुबारक मेंशन करनी है। सूद की हुर्मत की वजह यह है कि इससे पूरा माशरा तरक्की नहीं करता बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में तो इजाफा होता है लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानगी बढ़ती चली जाती है। सूद का रिवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं और अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सनत और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। इस तरह न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है बल्कि मुल्की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। जब मकरूज शख्स पर सूद की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है तो वो सूद उतारने के लिए या तो जराइम का इर्तिकाब करता है या खुदकुशी कर लेता है। सूदी मामलात की वजह से आए रोज लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत का बाजार गर्म रहता है। तो सूदी मामलात की वजह से किन चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है? लड़ाई झगड़े का, कत्ल गारत का, और जो लोग अदा नहीं कर सकते सूद उनको जराइम का सामना करना पड़ता है, और साथ साथ कुछ लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया गया है, लेकिन हमें तजारत, मुलाजमत, ज़राअत, सनत और दूसरे हलाल ज़राए से नफ़ा कमाने की इजाज़त भी दी गई है। अगर कोई शख्स अपना माल किसी हलाल कारोबार में लगाकर नफ़ा कमाना चाहे तो उससे भी मना नहीं किया गया। हलाल चीज़ों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है और उनमें कानून के मुताबिक नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर कारोबार की इजाज़त है। तजारत की बहुत फजीलत बयान हुई है। सच्चे और ईमानदार ताजिर को क़यामत के दिन आला दर्जात की बशारत सुनाई गई है। यह आप मार्क करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि तजारत की फजीलत बयान करें, तो उसमें आपने आंसर लिखना है कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। सच्चे और ईमानदार ताजिर को क़यामत के दिन आला दर्जात की बशारत सुनाई गई है। किसी इंसान को उसकी ज़रूरत और मजबूरी की हालत में कर्ज देना बहुत फजीलत की बात है। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए बगैर नफ़े के जो कर्ज दिया जाता है उसे कर्ज़े हुस्ना कहते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है आपके एक्सरसाइज का फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन कि कर्ज़े हुस्ना की फजीलत तहरीर करें। आपने बताना है कि जब किसी के मजबूर को उसकी मजबूरी की हालत में कर्ज दिया जाता है तो अल्लाह ताला उस इंसान से राज़ी होता है और उसे बगैर नफ़े के कर्ज दे तो उस कर्ज को क्या कहते हैं जी? कर्ज़े हुस्ना। सदके की तरह कर्ज हुस्ना भी एक नेकी है। सदके में दिए हुए पैसे वापस नहीं लिए जाते जबकि कर्ज हुस्ना में वो पैसे वापस लिए जाते हैं। तो आपसे ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि सदके में पैसे वापस नहीं लिए जाते जबकि कर्ज हुस्ना में पैसे वापस लिए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदका देने वाले को 10 गुना और कर्ज देने वाले को कर्ज का 18 गुना अजर मिलता है। तो सदका देता है उसको 10 गुना और जो किसी को मुश्किल वक्त में
कर्ज देगा जिसे कर्ज हुस्ना कहते हैं उसको कितना अजर मिलेगा 18 गुना। ये हमारे पास सिनद इब्न माजा की हदीस है 2431। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था कि वो किसी कर्ज देते, जब वो वापस करने आता तो उसे कर्ज माफ फरमा देते। किसी ने उसकी वजह ये पूछी तो फरमाया कि पहले मैं कर्ज का सवाब हासिल करता हूँ, फिर सदके का सवाब भी पा लेता हूँ। तो ये आ जाता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह कर्ज और सदके का सवाब इकट्ठा कमाते थे। तो आप लोगों ने उसमें ये चीज़ें मेंशन करनी है। लास्ट है जी हमारे पास कि हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा हलाल माल कमाएं। हमारे पेट में उतरने वाला लुकमा भी हलाल का होना चाहिए और हमारे जिस्म पर लिबास भी सिर्फ और सिर्फ हलाल माल का होना चाहिए। माल हलाल में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है और सुकून भी। हराम तरीके से कमाया गया माल ना सिर्फ दुनिया में बेसुकूनी, परेशानी और बेबरकती का जरिया बनता है, बल्कि आखिरत में भी इसका सख्त अजाब है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हराम तरीके से कमाया गया माल किस तरह से इंसान के लिए मुश्किल खड़े कर सकता है कि ना बेसुकूनी का बायस बनता, परेशानी का, बेबरकती का और आखिरत में सख्त तरीन अजाब का भी वजह ये बन सकता है। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर, हमारा बाप पंजन का पहला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जी सूद की हुर्मा, जो कि चैप्टर नंबर 19 था। साथ ही साथ हम लोगों ने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क कर लिए। एक्सरसाइज में चलते हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और साथ ही डिस्कस करते हैं लास्ट में अपना लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग के साथ। सूद को अरबी में कहते हैं जी रिबवा। नंबर 2, अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है और मटाता है सूद को। नंबर 3, सूद का रवाज आम होने से लोग छोड़ देते हैं मेहनत। नंबर 4, किसी इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए बगैर नफे के जो कर्ज दिया जाता है उसे कहते हैं कर्ज हुस्ना। नंबर 5, हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज हुस्ना देने वाले को अजर मिलता है 18 गुना। मुख्तसर जवाब हम कर चुके हैं। सूद का मायने मफहूम, कुरानी आयत, हदीस मुबारक, कर्ज हुस्ना और सूद के माशरे पर 2 नुकसानात। लास्ट पे आ जाते हैं और रह जाता है हमारे पास इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तहरीर करें। यानी कि आपके पास एक छोटा सा चैप्टर दिया गया, उसी पे हम लोगों ने कंप्लीट टॉपिक से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना है। तो आपके पास जो है वो हेडिंग में आप लोगों के साथ मार्क करते जाऊंगी और इसके साथ आपके स्क्रीन पे जो पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो होगा वो आप लोगों के पास हेडिंग का टेक्स्ट होगा जो कि आपने मार्क करना है अपनी बुक्स में। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी सूद का मायनी ओ मफहूम। यहाँ पे आपने तारुफ नहीं देना बल्कि देना है जी सूद का मायनी ओ मफहूम। उसमें आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ लिख देना है, यहाँ तक कंप्लीट इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी सूद एक लानत। सूद एक लानत, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट भी किए हुए। सूद एक लानत, उसमें आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कुरान मजीद में सूद की ममानत। कुरान की रोशनी में सूद की ममानत, मीम मीम अलिफ नून आइन ते, ममानत हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी कुरान मजीद की रोशनी में सूद की ममानत। उसमें आपने दोनों कुरानी आयात का तर्जमा यहाँ तक मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतरादिफ। ये आपकी हेडिंग आएगी सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ। उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे हर मजहब में सूद नाजायज। हर मजहब में सूद नाजायज, यहाँ पे आप हमेशा से का वर्ड जब कट कर सकते हैं। आप लिखेंगे हर मजहब में सूद नाजायज, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी मिराज में सैर। मेराज, शबे मेराज में सैर, उसमें आपने यहाँ से कंप्लीट पैराग्राफ को मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी सूद की हुर्मत की वजह। सूद की हुर्मत की वजह, जो कि यहाँ तक आपकी हेडिंग आ जाएगी सूद की हुर्मत की वजह। उसमें आप लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप हेडिंग देंगे जराइम का इर्तिकाब और खुदकुशी। जराइम का इर्तिकाब और खुदकुशी, जराइम का इर्तिकाब और खुदकुशी। यहाँ पे सिर्फ खुदकुशी का वर्ड हाईलाइट हुआ है और सेकंड वर्ड में आपके साथ हाईलाइट कर देती हूँ जराइम का इर्तिकाब और खुदकुशी। उसमें आपने यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है अपना टेक्स्ट। आगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग देंगे तजारत की फजीलत। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे तजारत की फजीलत, बहुत का वर्ड आप कट कर देंगे। तजारत की फजीलत हेडिंग आ जाएगी, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी कर्ज हुस्ना। उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने कंप्लीट हदीस मुबारक माफ कर देनी है, सॉरी लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का तरीका कर्ज माफी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का तरीका कर्ज माफी, उसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और यहाँ तक हम कंप्लीट मेंशन करेंगे और लास्ट पे हम हेडिंग देंगे जी हासिल कलाम। उसमें ये कंप्लीट लास्ट पैराग्राफ जो है जो आपके पूरा चैप्टर और टॉपिक को कंक्लूड करेगा वो आप लोगों ने यहाँ तक मेंशन कर देना है। उसी के साथ हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दफा हेडिंग्स को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे सूद का मायनी और मफहूम। नंबर 2 सूद एक लानत। नंबर 3 कुरान मजीद में सूद की ममानत। नंबर 4 अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ।
نمبر 5 ہر مذہب میں سود ناجائز. نمبر 6 سب معراج میں سیر. نمبر 7 سود کی حرمت کی وجہ. نمبر 8 جرائم کا ارتکاب اور خودکشی. نمبر 9 تجارت کی فضیلت. نمبر 10 قرض حسنہ. نمبر 11 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول قرضہ معافی. اور نمبر 12 حاصل کلام. اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 19 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کے باب پنجم کا پہلا سبق ہے. ٹوٹل اس میں ہمارے پاس 3 آئیں گے اور پہلا آج ہم لوگ کر چکے ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. ان کیس کوئی بھی ڈیفیکلٹی کوائری کوشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. تھینک یو.